اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کا جسم بولے گا. ریکارڈر ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے سب اندر، بھلا برا دونوں ریکارڈ ہو رہا ہے. تو جسم بولے گا، یہ کہے گا ہائے تیری تباہی بربادی، تو اپنے خلاف خود ہی گواہی دے رہا ہے. تو جسم کے اعضا بولیں گے ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں، دنیا میں تیرے پابند تھے، آج تیرے نہیں اللہ کے پابند ہیں. پھر وہ دو نام اعمال کی کتاب، حدیث میں آتا ہے کہ اگر یہ کامیاب ہے تو فرشتہ سیدھے ہاتھ سے نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دے گا. یہ خوشی اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹے گا کہ آج میں کامیاب ہو گیا، آج میں کامیاب ہو گیا. اور اگر یہ ناکام ہے تو فرشتہ الٹے ہاتھ سے پیٹھ کے پیچھے سے الٹے ہاتھ میں دے گا، تو کہے گا ہائے میری تباہی، ہائے میری بربادی. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں موقع دیا ہے، موقع امتحان ہے. دنیا کی زندگی نادانی ہے، سمجھنا کہ مزے اڑانے کی جگہ، ارے مزے اڑانے کی جگہ نہیں ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے. یہاں موقع ہے، موقع بڑا موقع ہے، اللہ نے سب کو موقع دیا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ جو دو فرشتے نام اعمال ریکارڈ کرنے والے ہیں، ان دونوں میں سیدھے ہاتھ طرف کا فرشتہ امیر اور بائیں ہاتھ کی طرف کا فرشتہ اس کا اسسٹنٹ، امیر صاحب سیدھے ہاتھ طرف والے. جب یہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو فوراً لکھ لیتا ہے. نیکی کے ارادے پر بھی 1 ثواب، کریا نہیں اب بھی ارادہ کرے 1 ثواب، عمل کا کیا تو 10. تو نیکی کا ارادہ کرتا ہے یہ لکھ لیتا ہے، عمل کرتا ہے 10 بڑھا دیتا ہے. اور اگر یہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو یہ امیر صاحب سے پوچھتا ہے، امیر صاحب انہیں برائی کا ارادہ کر رہا ہے، لکھ لوں؟ تو انہیں بولتا ہے ارے ذرا تھوڑی دیر ٹھہر جا، ارادہ ہی تو کیا ہے، ہو سکتا ہے عمل کرے نہ کرے، تو اتنی جلدی کیوں کرتا ہے؟ تھوڑی دیر گزر جاتی ہے اور وہ گناہ کر لیتا ہے. پھر وہ پوچھتا ہے امیر صاحب ابھی لکھ لوں؟ وہ کہتا ہے کہ تھوڑی دیر ٹھہر جا، شاید توبہ کر لے. ارے ذرا ٹھہر جا، شاید توبہ کر لے. اور دیر گزر جاتی ہے اور وہ توبہ بھی نہیں کرتا، تو وہ کہتا ہے لکھ لے، اس نے خود ہی اپنی تباہی کا ارادہ کیا ہوا ہے، میں کیا مدد کر سکتا ہوں اس کی. دو آنسو، 2 قطرے آنسو کے 2 قطرے. ارے بھائیو، بندے کے آنکھوں کے 2 قطرے اللہ کو اتنے پیارے ہیں کہ گناہوں کے دفتر مٹا دیتا ہے اللہ. جن گناہوں کے دفتروں کو دریا نہیں دھو سکتے، سمندر نہیں دھو سکتے، بندے کے شرم سے 2 قطرے نکل آئے کہ میں نے کیسا قصور کیا. وہ 2 قطرے گناہوں کے دفتر دھو دیتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اللہ کی بارگاہ میں شرم سے 2 قطرے آنسوں کے گرا دیتا ہے، اللہ پاک ڈائریکٹ حکم دیتے ہیں، فرشتے بھی بیچ میں نہیں، کہ اس کے نام اعمال سے گناہ مٹا دیے جائیں. کیسا کہتا ہو؟ اب تم نے آج کے زمانے میں بولنا، وہ سب پرانے زمانے کے زمانہ بولے تو سمجھ میں نہیں آتا. کیسا کہتا ہو؟
मोबाइल में बल्ला के मैसेजा जम गई, बेकार के एक भी काम का नहीं, पूरा भर गए। क्या करती एक एक कर को कितने मिटाना सो क्या करती हूँ बोलो? हाँ क्या देखे आल डिलीट करते इंजीनियर झक मारना। तो अल्लाह मियाँ बोलते हैं ऑल डिलीट, सेलेक्ट एंड डिलीट। क्या करो, क्या करो? सेलेक्ट एंड डिलीट। गुनाह पूरे सेलेक्ट कर को डिलीट, नेकियां सब रंदे, नेकियां सब वैसा रंदे, गुनाह सब सेलेक्ट एंड डिलीट। मैं समझा रहा हूँ, कुरान करीम में है कि अल्लाह गुनाहों को नेकियों से बदल देता है। तो फरिश्ता देखता है, कहते खोल को देखा तो सफ़े सफ़े खाली ही नामे अमल के। क्या हुआ सो बोलो? भूल गए इतने में डिलीट। उन्हें खोल को देखता है, कहते सफ़े सफ़े खाली, ठीक है तो नहीं क्या जरूरत नहीं सो गुनाह भर को पड़ी हो, सब सफ़े खाली हो गए। उन्हें परेशान हो जाता है, कहते अल्लाह मियाँ इन्हें करया मैं लिखा, इन्हें करया मैं लिखा। अब खोल को देखा तो सब खाली पड़ी है, सफ़े डिलीट। उन्हें परेशान हो जाता है, कहते कि रे तू ड्यूटी नहीं करा कर को अल्लाह मियाँ मुझे पूछा तो मैं क्या बोल रहा हूँ। मयाने आशिक व माशूक रमज़स किरामन कातिबी राहम खबर नेस। अल्लाह के बंदे के दरमियान ऐसा मामला होता है कि फरिश्तों को भी खबर नहीं होती दरमियान में। जाओ तुम्हारी भी जरूरत नहीं, मेरा बंदा मेरे दरबार में हाजिर हो गया, अब तुम्हारी भी जरूरत नहीं। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं उस फरिश्ते से कि अगर तुझे ये परेशानी है कि सफ़े खाली हैं तो जा उन खाली सफ़ों में नेकियां लिख दे। खाली सफ़ों में नेकियां लिख दे। कैसा मेहरबान मालिक है, कैसा मेहरबान मालिक है, और हम कैसे नमक हराम उसके बंदे हैं। बस भाइयों दो बातें पैदा करना है, दो बातें, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, दो बातें पैदा करना है। बंदे बनो अल्लाह के, बंदे बनो अल्लाह के, उम्मती बनो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। बस दुनिया कामयाब, मौत कामयाब, कब्र कामयाब, मैदान हिसाब कामयाब और जन्नत तक कामयाबी है। दो ही बातें हैं, ये मकसद जिंदगी है, ये मकसद जिंदगी है कि बंदे बनना है अल्लाह के, उम्मती बनना है। किसे कहते हैं बंदा? बाद में हो तो बंदा किसे कहते हैं? दुआ होने के बाद बंदा कहते हैं मानने वाला। जमात में जमा लेंगे उनको, कहते हैं जमात में जमा लेंगे। बंदा मानने वाले को कहते हैं, नहीं मानने वाले को बागी कहते हैं, नहीं मानने वाले को बागी। बाप की बात बेटा नहीं माना, बाप गुस्से में आको बोलता बागी मेरा बेटा जी, करो को तो कम करता नहीं, नको करो तो कम करता है। तो करने मानने वाले कहते हैं बंदा, जिसकी मानता है उसका बंदा, जिसकी मानता है नफ्स की माने तो नफ्स का बंदा, जमाने की माने तो जमाने का बंदा, दुनिया की माने तो दुनिया का बंदा, हालात की माने तो हालात का बंदा, जोरू की माने तो वो मैं बोलता नहीं, इंसल्ट हो जाती है। हम किसके बंदे? हम किसके बंदे? एक के बंदे। किसके बंदे? किसके बंदे?
एक के बंदे कितने प्यार से अल्लाह कहता है, अपने प्यारे रसूल से कहता है, अपने प्यारे नबी से अल्लाह प्यार से कहता है, ए मेरे प्यारे नबी, अगर मेरे बंदे आपसे पूछें कि हमारा अल्लाह कहाँ है, वो अल्लाह जिसके सामने हम हाथ बांध के खड़े होते हैं, जिसके सामने हम माथा टेकते हैं, नाक रगड़ते हैं, हाथ फैलाकर अपनी हाजतें और जरूरतें मांगते हैं, हमारा वो अल्लाह कहाँ है? अगर आपसे मेरे बंदे पूछें, वइज़ा सालक इबादी अन्नी, अगर मेरे बंदे आपसे पूछे मेरे बारे में, तो आप कह दीजिए फइन्नी करीब, वो अल्लाह तुम्हारे करीब है। करीब कितना करीब है? वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, ये तुम्हारी जान की रग जितनी करीब है, उससे ज्यादा तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे करीब है। ये अल्लाह अपने प्यारे रसूल से कहता है, कितने प्यार से कहता है, कितने प्यार से कहता है, मेरे बंदो उजीबु दावत दाई इज़ा दान, उजीबु दावत दाई इज़ा दान। मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, फल्यस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। मेरे बंदो मुझसे मांगो, अरे मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी सुनता हूं, तुम्हारी पुकार सुनता हूं, तुम्हारी हाजत जरूरत पूरी करता हूं। कभी कोई दिल में यह ख्याल न लाए कि अल्लाह हमारी नहीं सुनता। ये हरगिज मुसलमान को ख्याल नहीं आना चाहिए कि अल्लाह हमारी नहीं सुनता। अल्लाह फरमाता है मैं सबकी सुनता हूं। नमाज में पढ़ना है कुरान, लेकिन दुआ किसी ज़बान में मांगो, वो तुम्हारे दिल की धड़कनें सुनता है। हदीस में आता है हर नमाज के बाद, हर फर्ज नमाज के बाद एक दुआ कबूल होती है। हर फर्ज नमाज के बाद एक दुआ कबूल होती है। 5 फर्ज नमाजें पढ़ी, 5 दुआएं कबूल होती है। कभी मुसलमान को मायूस नहीं होना चाहिए कि हमारी नहीं सुनता। अल्लाह कहता है मैं सबकी सुनता हूं। हाँ, दुआ के कबूल होने के 3 तरीके हैं, उसको समझना चाहिए। एक तरीका दुआ के कबूल होने का यह है, जो मांगा मिल गया, तो आदमी समझता मेरी दुआ कबूल हो गई, मैंने मांगा था वो मिल गया मुझे। लेकिन 2 तरीके दुआ के कबूल होने के और भी हैं। वो क्या कि बाज़ औक़ात ये अपनी नादानी नासमझी से ऐसी चीज मांगता है जो इसके लिए मुसीबत बन जाएगी। इसे नहीं मालूम, ये नादान है, नासमझ है, ऐसी चीज मांग रहा है कि जो मुसीबत बन जाएगी। लेकिन अल्लाह मेहरबान है, मेहरबान, वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद, अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान मालिक। वो समझता है कि, वो जानता है कि ये मुसीबत मांग रहा है, वो नहीं देता, उसका कोई बदल देता है। दुआ वो भी कबूल करता है, उसका कोई बदल देता है, या उस दुआ की बरकत से इसके ऊपर आने वाली कोई बला मुसीबत को अल्लाह टाल देता है, हटा देता है। इसे नहीं मालूम कि ये जो बला हटी है, मुसीबत हटी है, ये मेरी दुआओं की बरकत है। मेरी दुआएं काम आई हैं, मेरी दुआएं काम आई हैं, ये बला जो हटी है। मिसाल, एक आदमी गाय बकरियां लेकर जंगल में चराने गया। शाम को जब घर लाने के लिए मंदा जमा करने लगा तो क्या देखता है कि एक गाय को किसी ने मार दिया। उसे बड़ा दुख हुआ, कितनी अच्छी गाय, कैसा दूध देती थी, मेरे सब बच्चे पीते, फिर भी बचता, बेचकर काम मेरे जरूरतें मेरी पूरी करता, ऐसी प्यारी गाय को कौन मारा। वो दुख हुआ उसे बहुत। वो गुस्से में आकर, दुख में आकर कहने लगा, ए अल्लाह, जिसने मेरी गाय को मारा है उसे लाकर मेरे सामने खड़ा कर। मैं तुझे कसम देता हूं, कौन मारे की उसे ला को मेरे सामने खड़ा कर। दुआ कबूल हो गई। शेर आकर खड़ा हो गया। शेर उन्हें मारा था, सो उन्हें खुद पी को काम कर को चलेगा उसका। तू उसने बोले अल्लाह को सामने खड़ा कर मेरे घर को।
दुआ कबूल हो गई, शहर खड़गा, अब कर क्या करता है? अब उन्हें गई को मारे, अब तुझे मारता है, तू क्या टीपू सुल्तान ने तलवार लेकर लड़ता है उससे? तो बाज मर्तबा आदमी ऐसी दुआएं मांगता है, उसे नहीं मालूम है मुसीबत मांग रहा हूं, लेकिन अल्लाह बड़ा मेहरबान है, वो दुआ भी कबूल करता है, उसके बदले उसे कुछ और चीज उसकी जरूरत की देता है, या इसके ऊपर आने वाली कोई बला मुसीबत इसे नहीं मालूम कि ये मुसीबत आ रही है। हदीस में आता है आसमान से कोई बला चलती है, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, मोमिन बंदे की दुआ उसे रोक देती है। और तीसरा तरीका दुआ की कबूलियत का ये है कि अल्लाह पाक क़यामत में कहेगा कि मेरे बंदे तेरी दुआएं मेरे पास जमा हैं, अरे तेरी दुआएं मेरे पास जमा है, तेरी अर्जियां। हमारे मौलाना इब्राहिम साहब अल्लाह उनकी उम्र बरकत हो, कहते हैं कि अल्लाह के यहाँ दुआओं का बड़ा इकराम है, तुम्हारी दुआएं तुम्हारी अर्जियां हैं। अल्लाह कोई अर्जी रिजेक्ट नहीं करता। दुनिया में 100 आदमियां होना, कितने डालती अर्जियां? अरे 100 की जगह खाली रहे तो कितने अर्जियां डालती है? 1000 100 को मिला, बाकी के सबको रिजेक्ट है। अल्लाह का कोई रिजेक्ट नहीं। अल्लाह कहता है तेरी बंदे तेरी अर्जियां दुनिया में जो तूने मेरे पास भेजी थी दुआएं वो जमा है, आज ले ले। तो बंदा कहेगा काश मुझे सब आज मिलता, दुनिया में थोड़ा मिला खत्म हो गया, या मिल रहा है इतना ज्यादा कभी खत्म नहीं हो रहा है। तो भाइयों कभी किसी मुसलमान को बेदिल नहीं होना चाहिए कि अल्लाह हमारी नहीं सुनता, जरूर सुनता है। हर नमाज के बाद एक दुआ कबूल होती है, हर फर्ज नमाज के बाद एक दुआ कबूल होती है। जुमा के दिन खुसूसियत से एक दुआ कबूल होती है। आज जुमा का दिन गुजर गया, एक दुआ जरूर कबूल होती है जुमा की। हाँ, एक शर्त है कि हराम से बचे, 50 शर्तें नहीं है, एक ही शर्त है कि वो हराम से, जो चीज हराम है उससे बचे। तो ये है भाइयों बंदा। ये क्या है? अरे बोलो भाई, बंदा। हम किसके बंदे? अरे किसके बंदे? हमारे अल्लाह से ताल्लुक है, खुश हो जाओ। हमारे अल्लाह से रिश्ता है। रिश्ता क्या? रिश्ता कि वो मालिक है, हम उसके बंदे हैं। वो हमारा मालिक है, हम उसके बंदे हैं। ये है ला इलाहा इल्लल्लाह। दुनिया में आते ही सबसे पहले हमें यही सुनाया गया। क्या सुनाया गया दुनिया में आते ही सबसे पहले? बोलो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुसलमान के घर बच्चा पैदा होता है, उसे नहला धोला कर सबसे पहला काम उसके एक कान में अजान देते हैं, एक कान में इकामत पढ़ते हैं। मुसलमान के घर में जब बच्चा पैदा होगा तो सबसे पहला काम यह है कि उसे नहला धोला कर उसके एक कान में अजान दो, एक कान में इकामत पढ़ो। मैं हमारा सुल्तान शाह मस्जिद में बैठा हुआ था, हमारे एक नौजवान आए, कहने लगे हजरत मेरे घर में बच्चा हुआ है। मैंने कहा भाई अल्लाह मुबारक करे। कहने लगे हजरत ज़रा तुम्हें आँख को अजान दे डालो। तो मैंने पूछा तुम्हें अजान देना आता है? आता है हजरत। मैं बोला बाप की अजान से बेहतर बच्चे के लिए किसी की नहीं हो सकती, जाओ तुम जाके अजान दो। तो मुसलमान के घर बच्चा पैदा होगा तो सबसे पहले उसके एक कान में अजान, एक कान में उसके इकामत पड़ेगी। ये हमारे प्यारे नबी ने किया। जब आपके नवासे पैदा हुए, आपने उन मौक़ों पर हजरत फातिमा के घर जाकर अपने नवासों को, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन, उनको अपनी गोद में लेकर उनके कान में अजान दी, इकामत पड़ी। तो जब मुसलमान के घर बच्चा पैदा होगा तो सबसे पहले वो करेंगे जो हमारे नबी ने किया है। ये कोई रस्म रिवाज नहीं है कि बच्चे के कान में सबसे पहले आवाज क्या पड़े? किसका नाम? अम्मा का, बाबा का, दादा का, नाना का। वो क्या ना इसमें लिखती ना रखिया में, उसका बेटा, उसका नवासा, उसका पोतरा।
پہلا نام ہمارے کانوں میں اللہ کا. اذان زندگی کے گزارنے کا طریقہ ہے کہ زندگی اس راستے پہ گزارو. کہ جب مریں گے تو قبر میں سب سے پہلے اٹھا کے پوچھیں گے تیرا رب کون ہے. تجھے دنیا میں آتے ہی تیرے کان میں اللہ کا نام دیا گیا تھا, آج قبر سے اٹھا کے پوچھیں گے کہ تیرا رب کون ہے. اگر اللہ کا حکم پہ چل کے آیا ہے تو کہے گا میرا رب اللہ ہے. تیرے دنیا میں جینے کا کیا راستہ تھا؟ اگر وہ دین پہ چل کے گیا ہے تو کہے گا کہ میرا دین ہے, اسلام ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک دکھا کے پوچھیں گے یہ کون ہے, تو اس کو جانتا ہے؟ اگر ان کے طریقے پر جی کے گیا ہے تو کہے گا کہ میرے پیارے نبی ہے جن کے طریقے پر میں زندگی گزار کے آیا ہوں. یہ ہے